have done in the last class. So if you have x summary जो हमने अभी तक किया है for this chapter, if x is your random variable with PDF f of x, then we define expected value of x as summation x f of x or over all the possible values of x or x fx dx, and then we define if you have any function, then the expected value of that function will be simply you replace your values with g of x, and then we defined in yesterday's lecture what will be sigma x square. क्या था फॉर्मूला? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, ये मीन है हमारा. ओके, सो दैट विल बी समेशन ओवर x, x माइनस म्यू स्क्वायर f of x, या फिर इंटीग्रल x माइनस म्यू स्क्वायर f of x dx. राइट बेटा? एंड वी हैव आल्सो डन अ शॉर्टकट फॉर कंप्यूटिंग द वेरिएंस, दैट वाज expectation of x square minus expectation of x का whole square. Right? This is what we have done. And also if x and y are two random variables with joint PDF xxy fxy, then expected value of g of xy was equal to summation gxy fxy. Summation is double here over x and y. Right? Is that okay, madam? So this is what we have already done. We have defined expected values, which are your means, and then we have defined variance, and you can of course define your standard deviation always as positive square root of variance. Correct, beta? किसी को doubt? So let us move ahead. So we have defined variance for x. Now suppose x is a random variable with PDF f of x and g of x is any function, then what will be the variance of g of x? Tell me beta. That will be expected value of एक्सपेक्टेशन किसकी? g of x माइनस g of x का जो मीन है उसका स्क्वायर, यही होगा ना बेटा? दैट इज इक्वल टू समेशन g of x माइनस म्यू g of x का स्क्वायर इनटू f of x. मतलब अगेन सेम थिंग कि पीडीएफ सेम रहेगा, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, तो अकॉर्डिंगली योर वेरिएंस फार्मूला विल आल्सो बी मॉडिफाइड. इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है. राइट? सो ये कैसे करेंगे? लेट अस लुक एट दिस प्रॉब्लम. कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ g of x which is equal to 2x plus 3, where x is a random variable with PDF x f of x 0 1 2 3. The corresponding probabilities are 1 by 4, 1 by 8, 1 by 2, 1 by 8. Do you understand the problem? You are given a random variable capital X, its PDF is given, and you are asked to compute the variance of g of x which is 2x plus 3. तो ये सिचुएशन कौन सी होगी बेटा? फॉर एग्जाम्पल x is something which you are selling and that is a random variable and 2x plus 3 is your profit or your revenue, whatever. So sometimes we have the data for some random variable but we are interested in mean and variance of some other random variable which is dependent on x. Right? So in that situation we'll use this thing. So कैसे निकालोगे बेटा वेरिएंस इसका? Tell me.
अब हमने वेरियंस निकालना है. वेरियंस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ g of x माइनस मीन कितना है 6 का स्क्वायर, राइट? इज दैट ओके? So what will be that? This is summation over all values of x of gx minus 6 square into f of x. So that will be, सबसे पहले x 0 बनेगा. So that is 2 into 0 plus 3 minus 6 square into 1 by 4 plus 2 into 1 plus 3 minus 6 square into 1 by 8 plus 2 into 2 plus 3 minus 6 square into 1 by 2 plus the last term, that will be 2 into 3 plus 3 minus 6 square into last probability 1 by 8. So this is equal to 4. Clear है बेटा? Any doubts? और कैसे कर सकते हैं इसको? Any other way? ये हमने e of g of x निकाला है, राइट? अगर e of g of x स्क्वायर निकाल लो, बट वो भी इतना इजी नहीं होगा क्योंकि आपको स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, राइट? सो इस देन द फॉर्मूला विल बी दिस माइनस दिस स्क्वायर, ये शॉर्टकट फॉर्मूला, बट नॉट वेरी यूजफुल हियर, कैलकुलेशन नहीं हो रही, राइट? x के केस में वो यूजफुल है जब आपके पास सिर्फ x है. चले आगे. Do this problem quickly. So you have x is a random variable with PDF. X is a continuous random variable with PDF. F of x is equal to x square by 3 for minus 1 less than x less than 2, 0 otherwise. Find variance of g of x which is 4x plus 3. बताइए. सबसे पहले क्या निकालेंगे? मीन निकालेंगे. What will be e of g of x? That will be integral g of x f of x dx. Now this is from minus infinity to infinity, but the function f of x is defined for minus 1 to 2 and otherwise it is 0. So this becomes minus 1 to 2. gx क्या है? 4x plus 3 into fx क्या है? x square by 2 dx by 3 dx. Is that okay बेटा? So this is how you compute the mean. समझ में आ गया सबको? gx का मीन निकालना है और pdf क्या है? f of x. x और gx का pdf सेम है. So this is कंप्यूट कर लीजिए. This will be 8. Okay बेटा? Now what will be variance निकालना है हमने? variance का फॉर्मूला, that will be integral minus infinity to infinity g of x minus whatever is the mean then square into fx dx. राइट बेटा? डेविएशन का स्क्वायर कर दिया और पीडीएफ से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया. दिस विल बी minus 1 to 2 gx is 4x plus 3 minus 8 whole square into x square by 3 dx. इंटीग्रेट कर लोगे so you will get 51 by 5. This is your answer. Got it? So we had a random variable x, then we defined its mean and variance. So we are done with whatever parameters we wanted to define. So the next thing is, which is very important and you may have heard it so many times, covariance. सुना है बेटा? covariance सुना है कि नहीं? सुना होगा कहीं ना कहीं किसी कोर्स में, ठीक है?
कोवेरियंस क्या होता है बताइए, टेल मी एनीबडी व्हाट इज कोवेरियंस। मैंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ वर्ड लिखा है, एग्जैक्ट डेफिनेशन मत बताओ, एनीथिंग यू नो अबाउट कोवेरियंस, व्हाट इट टेल्स यू। कहाँ सुना है आपने? Okay, beta. So now we have this situation that we have two random variables x and y, right? Suppose y depends on x, right? So we would like to know the kind of dependence. काइंड ऑफ डिपेंडेंस का क्या मतलब है बेटा, कि अगर आप x इंक्रीज कर रहे हो, y इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, राइट? सो दैट काइंड ऑफ डिपेंडेंस विल बी measured by covariance. So basically the covariance tells you the relation between two random variables, that you have two random variables x and y which somehow are dependent on each other. So we want to know whether they are continuous together increasing and together decreasing, मतलब synchronization है वहाँ पे, okay? So if we have positive covariance, we will see it means that both are increasing together or decreasing together, okay? So इसका मतलब अगर x large है तो corresponding y भी large होगा। एंड समटाइम्स वी हैव अ नेगेटिव कोवेरियंस, मतलब अगर एक बड़ा है देन द अदर वन इज स्मॉलर एंड वाइस वर्सा। इज दैट ओके? सो कोवेरियंस, हाउ डू वी डिफाइन इट? डेफिनेशन इज given two random variables x and y with joint PDF fxy, their covariance denoted by COV x comma y is defined as mean of x minus mu x y minus mu y। ऐसे डिफाइंड है कि x का x की जो डेविएशन है अपने मीन से और y की जो डेविएशन है अपने मीन से, उसका मीन ले लीजिए, राइट? सो मीन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ x and y फ्रॉम देयर कॉरेस्पॉन्डिंग मीन्स। नाउ यू सी हाउ वी कैन see if x and y are together large or together small, okay? अगर ऐसी सिचुएशन है कि दोनों साइमल्टेनियसली, so something like this is suppose x and this is y, so I have this situation, ये x की वैल्यूज है, ये y की वैल्यूज है, राइट? सो इस केस में होगा इफ x इज लार्ज, इसका मतलब क्या है कि x माइनस म्यू x विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। x अगर अपने लार्जर साइड पे है मीन तो समवेयर इन बिटवीन होगा ना, ठीक है? सो दिस इज पॉजिटिव एंड इफ वी हैव अ सिंक्रोनाइज्ड सिचुएशन, मतलब x लार्ज y इज आल्सो लार्ज, तो उस केस में y माइनस म्यू y क्या होगा? पॉजिटिव। तो प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव, और पॉजिटिव टर्म्स का मीन लोगे तो क्या आएगा? नेगेटिव, पॉजिटिव, राइट? सो कोवेरियंस क्या हो गया? पॉजिटिव। डू यू अंडरस्टैंड? अब मान लो y x इज स्मॉल, उस केस में x माइनस म्यू x
रिलेशन विच इज सिंक्रोनाइज, मतलब x इंक्रीज हो रहा है तो y भी इंक्रीज होगा, जब x स्मॉल है तो y भी स्मॉल है. So you have this situation. So we say that x and y are positively correlated. मतलब उनका जो एक इंक्रीज होगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा. Can you relate beta everybody? This is how I define my covariance. And now can you see how this tells you when both are synchronized, this will be a positive quantity. Covariance will be a positive quantity when x and y increase or decrease together. Now we will see how this is a negative quantity when they are opposite. मतलब x बड़ा है y छोटा है, x छोटा है y बड़ा है, right? In that situation क्या होगा बेटा? So you have something like this. ये suppose x का ग्राफ है, corresponding y का ग्राफ कैसा होगा? y का ग्राफ will be something like this. ना? जब वो बड़ा है वो छोटा है, understood? So ये आपका corresponding y का ग्राफ, this red. Okay, जब इसकी smallest value है उसकी largest है, जब उसकी largest है इसकी smallest है, right? So इस केस में क्या है? सेकेंड केस में क्या है? x लार्ज है तो इस मीन्स x माइनस म्यू x पॉजिटिव. जब x लार्ज है इस सिचुएशन में y स्मॉल है, therefore y minus mu y will be negative, so product will be negative, therefore covariance will be negative. Do you understand beta? And vice versa, when x is small and y is large, उस केस में x minus mu x will be negative, y minus mu y will be positive, product will be negative, and therefore covariance will be negative. Okay beta? So whenever you have the inverse situation, not synchronous, मतलब anti है, x अगर increase अपनी higher values पे है, y अपनी lower values पे है, तो फिर आप क्या करोगे? आपका कोविडेंस क्या होगा? नेगेटिव. कैन यू टेल मी एनी सिचुएशन वेयर यू वुड लाइक टू यूज दीज थिंग्स? साइन कॉस, चलो हाँ, वो दे आर कैसे है, वो नेगेटिवली कोरिलेटेड है, राइट? बट एनी रियल लाइफ सिचुएशन वेयर यू वुड लाइक टू सी दिस काइंड ऑफ एनालिसिस? सपोज you have two stocks you want to invest in, तो अगर वो उनका कोरिलेशन नेगेटिव है तो आपको कुछ फायदा होगा, है ना? नेगेटिव मतलब एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे, मतलब आपको कभी बेनिफिट नहीं होगा. एक अगर आपको बेनिफिट दे रहा है तो दूसरा लॉस होएगा ही होएगा. तो ओवरऑल आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न विल बी जीरो. बट उस केस में यू आर श्योर कि नेगेटिव नहीं होगा, मतलब वो नहीं होगा, आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि अगर एक लॉस में है तो दूसरा will give you some returns. Is that okay? So whenever we take care of these things when we make portfolios, if you have negatively correlated, कई बार होता है ना कि there are industries कि अगर इसने grow करना है तो दूसरी इंडस्ट्री नीचे जाएगी जाएगी, so those stocks are negatively correlated, so we don't make a portfolio जिसमें वो दोनों stocks रहें, क्योंकि that makes no sense. Do you understand beta? ओके. सो देयर मे बी फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर सीजन में एक पर्टिकुलर चीज है जो बहुत ग्रो करेगी और उस सीजन में कुछ चीज है जो बहुत डाउन जाएगी. सपोज इन एक्सट्रीम विंटर्स टूरिज्म डाउन जाएगा ही जाएगा, ठीक है? एक्सट्रीम विंटर्स में मान लो कोई घूमने जाता है तो वहां पे आपका वो वाला स्टॉक जो है, एंड सपोज एक्सट्रीम विंटर्स में वुलन क्लोथ्स जो होगा उसका जो कोई स्टॉक है, दैट विल go up, so they are negatively correlated. So it will make no sense that you have these two shares in your portfolio together. So these kind of analysis, they are actually done when we use like stock market or so many places. ये आपका यूज करते हैं हम कोवेरियंस. गॉट इट बेटा? so, आपको एग्जाम में सिर्फ बस ये निकालना है, ये फॉर्मूला यूज करके कोवेरियंस निकालना है. करें क्वेश्चन? Okay, and can you tell me what will be covariance if x and y are? Let me see. If x and y are independent, what will be covariance? Yes.
डिपेंडेंट ऑन एक्स, तो ये जो बीटा दिस पार्ट इज कॉल्ड लीनियर। सो जो कोवेरियंस है वो इतना पार्ट कैप्चर करता है, तो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी। सो अगर कोवेरियंस जीरो है इसका मतलब एक्स एंड वाई आर नॉट लीनियरली रिलेटेड बट दे मे बी नॉन लीनियरली रिलेटेड। ओके, सो वी विल नॉट गो इनटू दैट पार्ट, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर इंडिपेंडेंट है इसका मतलब रिलेशन है ही नहीं, ना लीनियर ना नॉन लीनियर। तो कोवेरियंस तो लीनियर रिलेशन कैप्चर करता है, दैट विल बी जीरो, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सो कोवेरियंस अगर जीरो है देन आल्सो एक्स एंड वाई कैन बी इंडिपेंडेंट और कैन बी डिपेंडेंट, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो वी कांट मेक अ स्टेटमेंट व्हेन कोवेरियंस इज जीरो। वो मैं प्रूफ कराऊंगी। वैसे आप जनरल सेंस में देखो, अगर एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट है इसका मतलब वाई का और एक्स का कोई रिलेशन नहीं है, तो वो हम कोवेरियंस क्या मेजर कर रहे हैं कि क्या सिंक्रोनाइजेशन है ना। अच्छा, आपको इसका प्रूफ चाहिए? ठीक है, ये अभी बता। एक्चुअली विल प्रूव दिस थिंग बेटा कि जो कोवेरियंस है, विल प्रूव दिस थिंग कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। अभी करते हैं, राइट? तो अब अगर इंडिपेंडेंट है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। अभी प्रूव करते हैं, इसका प्रॉपर आपको पता चलेगा। ओके बेटा, सो कोवेरियंस की डेफिनेशन क्लियर है सबको? ये क्लियर है सबको कि पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, राइट? ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज notation. We'll use this notation, sigma xy for covariance of x and y. Okay, so I'll prove this result that sigma xy is equal to e of xy minus e of x into e of y. इसको फिर यूज करके वो रिजल्ट प्रूव करें। ओके, कैन वी प्रूव दिस थिंग बेटा? करो सब लोग। क्या है सिग्मा एक्स वाई डेफिनेशन, फटाफट बताइए। Yeah, so that is x minus mu x, y minus mu y into fxy, sum over x and y। यही है ना बेटा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, ऐसे डिफाइन है ना, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू एक्स, y माइनस म्यू वाई। अब ये एक फंक्शन है, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालूंगी मैं? फंक्शन इनटू द कॉरेस्पॉन्डिंग पीडीएफ, सम ओवर ऑल द वैल्यूज ऑफ x एंड y, राइट? नाउ ये क्या होगा आपका? एक्स वाई प्रोडक्ट कीजिए, माइनस म्यू वाई इंटू एक्स माइनस म्यू एक्स इंटू वाई प्लस म्यू एक्स म्यू वाई, एफ एक्स वाई। क्लियर है बेटा ये चीज? सिर्फ मैंने दोनों को प्रोडक्ट किया है। इज दिस क्लियर? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, राइट? कोई डाउट? Okay, now can we separate all the terms? The first term will be xy fxy, second term will be xy mu y x fxy, third term will be xy mu x y fxy, and the last term will be mu x mu y fxy. Clear बेटा? इसमें से म्यू वाई इज अ नंबर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई विल कम आउट। म्यू वाई तो मीन है ना, वाई का मीन है, वो एक नंबर है, वो एक्स और वाई पे डिपेंड नहीं करता। और इसमें म्यू एक्स विल आल्सो कम आउट of the summation, and here mu x and mu y will come out. So you have summation x summation y x y f x y minus mu y बाहर, और अंदर आपके पास है x into x f x y summation over x and y minus mu x बाहर summation over x and y y f x y, and then the last term is plus mu x mu y summation over x
E of x, right? Expected value of x, क्योंकि x है ना सिर्फ फंक्शन. So this is minus mu y into expected value of x. What is this? E of y minus mu x E of y. And what is this? Sum of all the probabilities 1, है ना. लास्ट एस क्या कर रहे हो? फोन रखो अंदर बैग में, पढ़ाई करो. What is sum of what is the last term बताना? 1. Sum of all the probabilities. This is mu x mu y. Understood बेटा? So what is this? This is e x y minus ये क्या है? mu x. ये क्या है? mu y. तो a कैंसिल हो गया, mu x mu y. This is covariance. So covariance का ये फॉर्मूला है. ओके, सो हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही हम यूज करेंगे. कोवेरियंस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ. नाउ यू अंडरस्टूड बेटा. अगर x and y will be independent, then this will become expectation of x into expectation of y. याद है ना आपको? probabilities a into b अलग कर सकते हैं हम, right? So this will become ex into ey. फिर कैंसिल हो जाएगा, फिर 0 आएगा if x and y are independent. So this is the result which we will be using for problems. Okay, is that thing clear beta? And then we define something called correlation coefficient. ये तो correlation है ना, this is covariance. And then we define correlation coefficient double R. This is defined as rho xy is equal to sigma xy upon sigma x into sigma y. Okay, so we will prove that rho xy जो है is always between 1 and minus 1. So this is basically a क्या कर देते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, एक तो ये डायमेंशन लेस होगा, कैन यू सी, राइट? और डायमेंशन लेस है तो ये दिस इज अ नंबर जो स्केलिंग किया हुआ है, मतलब राइट, हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेगा. अगर पॉजिटिव है इसका मतलब x एंड y आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड. एंड सपोज दिस coefficient is 0.5 and for some another two variables it is 0.7. So it also tells you the strength. 0.7 वाला ज्यादा उनमें रिलेशन है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है एज कंपेयर टू 0.5. सो दिस कोएफिशिएंट नॉट ओनली टेल्स यू कि पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, मतलब टाइप ऑफ दिस रिलेशन बिटवीन x एंड y. टाइप मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव. इट ऑल्सो टेल्स यू हाउ स्ट्रॉन्ग दे आर रिलेटेड, how strongly they are related. Okay beta, is that thing clear? So most of the times we always tell कि this is the correlation coefficient. इसका मतलब अगर correlation coefficient 1 है, there is a maximum correlation between x and y. And अगर -1 है इसका मतलब बिल्कुल उल्टा है, somewhere in between. Accordingly you can see. Okay beta, do this problem. For x and y with joint PDF fxy given below, find covariance of xy and the correlation coefficient. ये आपका x is 0 1 2, y is 0 1 2. So the functions are 3 by 28, 9 by 28, 3 by 28, 0 0 0, 3 by 14, 3 by 14 and 1 by 20. Tell me what will be your this covariance. कैसे निकालोगे?
पहले तो हमें वो चाहिए होगा, म्यू ऑफ एक्स चाहिए, मीन ऑफ एक्स, मीन ऑफ वाई चाहिए। तो कैसे जैसे मर्जी निकाल लो। तो उसके लिए हमें एच वाई इज 15/28, 3/7, 1/28, g of x is 5/14, 15/28, 3/28। तो म्यू ऑफ एक्स क्या होगा बेटा, फटाफट क्लास कल ही किया हमने, ये होगा ना x इंटू जी एक्स, चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, एक्स वाई एफ एक्स वाई, ऐसे कर लो चाहे ऐसे, मैंने कल बताया था ना कि चाहे ज्वाइंट पीडीएफ यूज कर लो और यू कैन यूज द मार्जिनल पीडीएफ। सो दिस विल बी 0 इंटू 5/14 प्लस 1 इंटू 15/28 प्लस 2 इंटू 3/28। सो दिस इज इक्वल टू 3/4, ये कल किया हुआ है, राइट। सिमिलरली म्यू वाई कैसे निकालोगे, समेशन ओवर वाई, वाई इंटू एच वाई, सो दैट इज 0 इंटू 15/28 प्लस 1 इंटू 3/7 प्लस 2 इंटू 1/28, so that will give you 1/2। okay बेटा, so e of x and e of y निकाल लिया, what will be e x y, tell me quickly। that will be summation over all values of x and y, x y f x y बेटा, ये भी शायद हमने कल किया। so that will be इसके corresponding 0 0 into f 0 0, x भी 0 है y भी 0 है, प्लस यहाँ पे x1 है y 0 है इंटू 9/28, वैल्यूज लिख रही हूँ मैं सीधा, 3/28, यहाँ पे x1 2 है y 0 है, प्रोबेबिलिटी इज 3/28, प्लस यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है ये टर्म्स, राइट, क्योंकि 0 बन रही है ना, यहाँ पे आपका x 0 है y 1 है इंटू 3/14 प्लस here your x is 1 y is 1 into 3/14, ये लिखने की जरूरत नहीं है, 0 है, and here you have x 0 y 2 into 1/20, so this is 3/14। okay, so what will be covariance, sigma hy will be expectation of xy minus expectation of x into expectation of y, so that is 3/14 minus 3/4 into 1/2, so that is minus 9/56। इसका मतलब these two वेरिएबल्स जो हमने बार बार इसको यूज किया है हमने ये वाली प्रॉब्लम को, दे आर नेगेटिवली कोरिलेटेड। याद है ये क्या था क्वेश्चन, कहाँ से हमने बनाया था, ये भी ज्वाइंट पीडीएफ में जब हमने सबसे पहली बार क्वेश्चन किया था, दिस वाज द यू हैड अ बैग जिसमें यू हैड 7 बॉल्स, उसमें से हमने 3 बॉल्स पिक करनी थी, नंबर ऑफ रेड और ग्रीन उल्टा था, मतलब एक रेड बॉल शो कर रहा था एक ग्रीन बॉल, तो ऑब्वियसली अगर वो नंबर ऑफ रेड बॉल्स पिक्ड आर इंक्रीजिंग तो ग्रीन बॉल्स डिक्रीज हो जाएंगे ना, सो फॉर श्योर दे आर नेगेटिवली कोरिलेटेड। सो ये ओरिजिनली हमने सबसे पहले तब किया था ये वाला प्रॉब्लम जब हमने ज्वाइंट पीडीएफ डिफाइन किया था, उसमें यू कैन सी दैट इन दिस प्रॉब्लम x was telling you that you picked a sample, in that sample the number of red balls and y was telling you number of green balls, तो जब रेड बढ़ेंगी तो ग्रीन कम होंगी ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पिक्ड वर फिक्स्ड, so they are negatively correlated, so here you can see you are getting your covariance as negative। now can you tell me what will be, मुझे वो चाहिए कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट विल बी सिग्मा xy अपॉन सिग्मा x इनटू सिग्मा y, कल निकाला था ना इसका वेरिएंस, देखना जरा, नहीं वेरिएंस पता नहीं, निकालो वेरिएंस पता, कैसे निकालोगे वेरिएंस, क्विकली निकल जाएगा, मुझे सिग्मा सिग्मा y चाहिए, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ध्यान रखना, ये ना सिग्मा x स्क्वायर जो होता है वो
y square will be equal to, ये मेरा आ रहा है 4/7 माइनस ये हमने निकाला है 1/2 निकाला का स्क्वायर, so this is 9/28. so correlation coefficient क्या आएगा बेटा, so this will be sigma xy हमारा कितना है minus 9/56 upon square root of 45/112 into square root of 9/28. so this is minus 1 by square root of 5. so this is a number, scaled number, right? now you see that this much is the strength of the correlation and correlation kind is negative. ठीक है, मतलब समझ रहे हो क्या था उसमें था कि कोरिलेशन का स्ट्रेंथ का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं होगा कि अगर एक अपनी 100% पीक पे है तो दूसरा अपना 100% लो पे नहीं है. वो कब होगा, जब आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या है -1, है ना. अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट -1 है मतलब जब वो अपनी मैक्सिमा पे है, वो कॉरेस्पॉन्डिंग मिनिमा पे है. बट अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट हाफ है या -हाफ है, इसका मतलब पूरा उल्टा रिलेशन नहीं है. डू यू अंडरस्टैंड? दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंथ. क्लास का टाइम हो गया. ओके, विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर. थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेटा, एंड नेक्स्ट लेक्चर में दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड. ओके, थैंक यू बेटा.